Hey, good morning class. I hope you all are fit and fine in your home and doing your job in proper manner. So dear student, today we are going to start our next chapter, which is inverse trigonometric function. So before I start this chapter, which is called as inverse trigonometric function, I am requesting you all of you that to teach and to learn this particular chapter, kindly go through the chapter trigonometric function of 11th standard, which I have taught you earlier, and I have also made some videos on it, because if you do not know what is an trigonometric function, then it is quite difficult for you to understand what is inverse trigonometric function. Okay, so in today's video lecture we will just understand what is inverse trigonometric function and what is their domain and range, okay, and their graph also. So let us start. So the topic is inverse trigonometric function. Okay, inverse trigonometric function. So basically you already know what is trigonometric function. Okay, what is function? Actually function is nothing but an association. Okay, function is nothing but the association between the elements of any two sets in such a manner every element of domain has a unique identity. Anna? This is the function. Simply function is nothing but a association between any two sets in such a manner that no any two element of codomain have the same preimage, or you can say in the other sense, for every element in the domain it can have only one unique image for in codomain y. तो ये तो जनरल सी डेफिनेशन हो गई फंक्शन की. Trigonometric functions, all trigonometric ratios are said to be as a trigonometric function. Why? Because they are fulfilling the property of functions, है ना. So all the trigonometric ratios like fx is equal to sin x, है ना, cos x, tan x, sec x, cosec x and cot x. Okay, these are the 6 trigonometric ratios, and in 11th standard we have discussed कि all trigonometric ratios are fulfilling the property of function. That's why they are also known as a trigonometric function. They work as a function. For example, if I am taking a function sin x, if I am taking a trigonometric function sin x, I have to prove that this is a function. Okay, this trigonometric ratio is a function. So you can easily check for different values of x, है ना, for different values of x you got different values correspond different values of fx. Okay, you can check it. Okay, now here x is an angle in terms of, you can say, degree. So if you are putting the values different values to the x, okay, this is x, this is y, suppose. So if you are putting here 0, then sin 0 gives you 0. If you are putting here instead of x you are giving the value 30 degree, okay, then it will gives you, okay, 1 by 2. If you are putting 45 degree here, then it will gives you 1 by root 2. So you can easily check that for each input, for each individual input you got the corresponding output. There is no any two elements in set y having the same preimage in set x. That's why it is called a trigonometric function, because it fulfills all the property of the function. Now here we are talking about inverse trigonometric function, not about trigonometric function, because about trigonometric function we have already discussed in 11th standard. So what is inverse trigonometric function? As I told you before this chapter, I have started with relation and function. That's why I have started with relation and function. Okay, and in function I have discussed about what is inverse of a function. Okay, any function is said to be invertible function if it is bijective, that is it is 1 1 and on 2. So कोई भी फंक्शन है अगर उसका इन्वर्स की हम बात कर रहे हैं तो उसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल कब होगा? जब वो 1 1 और ऑन 2 होगा, दैट मीन्स बाइजेक्टिव होगा. सो वी नो दैट अ फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, अ फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट इज बोथ 1 1 and on 2, and if the function is 1 1 on 2, then it is said to be a bijective function. Okay, what is the terminology for it? It is said to be a bijective function, and if the function is bijective, then it is said to be invertible. And if the function is invertible, beta, then its inverse exists. Only then its inverse exists.
okay. So this is the you can say the steps, okay. If any function is said to be if the inverse of any function is existing somewhere, then it must be invertible and it must be bijective, and for bijective it must be 1 1 and on 2. So today we are talking about inverse trigonometric function. So we will see how a trigonometric function will get changed in form of its inverse. कैसे उसका inverse हम find करेंगे, ठीक है. So let's start. The very first topic, suppose I am taking here function sin x, okay. Suppose I am taking a function here sin x and we have to find the inverse of it. हमें इसका inverse find करना और देखना है कि इसका inverse exist करता है क्या. So dear student, as you know, in 11th standard we have discussed the domain and range of all trigonometric functions, okay. I am writing here trigonometric function is there, their corresponding domain is there and their corresponding range is there, okay. So the very first is sin x, okay. Here I am taking x as an argument, or you can say angle. So basically domain, what is the domain beta? What is domain? Domain is nothing but the value of x for which the given function is defined, okay. सिंपल अगर भाषा में हम कहें कि x की वो सारी वैल्यूज इस डोमेन के अंदर आएंगी जिसके लिए sin x क्या हो, डिफाइन हो, एक डेफिनिट और अच्छी वैल्यू हमें दे, इन्फिनिटी ना दे. तो बेटा फॉर sin x set of real number is domain because we can put every value, each value for each real number this sin x is defined. कोई भी वैल्यू यहाँ पे उठा के रखेंगे आप x की जगह तो ये डिफाइन होगा, there is no any issue, ठीक है. साइन और कॉस के केस में कोई इशू नहीं होता. इन केस ऑफ साइन एंड कॉस बोथ आर हैविंग द सेम डोमेन एंड विच इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड द करस्पॉन्डिंग रेंज. व्हाट इज द रेंज? रेंज मीन्स कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जा रही है. तो रेंज इज -1 to 1, है ना. -1 और 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है. फिर आ जाती है बात cos x की. सेम डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेम रेंज -1 to 1. नेक्स्ट tan x, ओके. सो आपको याद नहीं करना है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan x. एक्चुअली tan इज व्हाट? tan इज द रेशियो ऑफ sin and cos. tan इज व्हाट? tan इज द रेशियो ऑफ sin x and cos x. एंड वी नो दैट नाउ दिस इज लाइक अ रैशनल फंक्शन. रैशनल जानते हो, px अपॉन qx का फॉर्मेट. सो अगर इस tan x को डिफाइन होना है, इसको एक डेफिनेट वैल्यू, एक अच्छी वैल्यू देनी है, सो cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. cos को तो 0 ही नहीं होना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा. सो इसका डोमेन जो है वो क्या होगा बेटा? सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट दोज पॉइंट एट विच cos टर्न्स टू अ 0. केवल उन पॉइंट्स को हम छोड़ देंगे जहां पे cos x हमें क्या देगा? 0. एंड वी ऑल नो कि cos कब कब 0 देता है. फॉर ऑल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2. फॉर ऑल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 cos बिकम्स 0. cos गिव्स अस अ 0. सो हम क्या करेंगे? रियल नंबर में से माइनस कर देंगे. ऑड मल्टीपल मीन्स 2n + 1 टाइम π/2. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड व्हाट इज इस रेंज? रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर, है ना. -∞ से इन्फिनिटी तक सब एग्जिस्ट करते हैं. मैं बताऊंगा क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है. नेक्स्ट cot x. cot x इज रेशियो ऑफ cos x एंड sin x. ओके, cos x is what? cos x is basically the ratio of cos and sin. Now see, if denominator will be 0 then cos will be infinity. It means undefined. तो undefined तो चाहिए नहीं हमें. So for cos x the domain will be set of real number except those points at which sin x turns to a 0. So sin x 0 कब कब देख रहा? मैंने अर्लियर आपको बताया था, I have discussed it in 11th standard कि sin x, cos x, tan x ये कब 0 देते हैं. तो sin x बेसिकली कब 0 देता है? For all integral multiple of pi. Okay, for all integral multiple of pi, ठीक है ना. So r minus n pi where n belongs to z. Okay, for all integral value of pi and range is set of real number. Now talking about sec x. So sec x is the ratio of 1 upon cos x. We can represent it like that. So again you can see whenever cos will be 0 then sec will turns into a infinite or you can say indefinite values. ठीक है, तो cos अगर 0 होगा तो sec क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. सो यहाँ पे भी इसका जो डोमेन होगा क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर में से आपको यू हैव टू सबट्रैक्ट व्हाट? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2. ओके, एंड रेंज में क्या होगा? -1 से 1 का इंटरवल आपको
हटाना पड़ेगा कहाँ से, सेट ऑफ रियल नंबर से। और ऐसा क्यों होता है मैंने ग्राफ में बताया था आपको 11th में, एंड अगेन आई विल डिस्कस अबाउट इट। नेक्स्ट cosec x, it is the ratio of 1 upon sin x, 1 and sin x, sorry, it is the reciprocal of sin x actually. So its domain will be set of real number में से हमें हटाना पड़ेगा n pi where n belongs to z, because for all integral multiple of pi sin becomes 0, and if sin will turn into 0 then cosec will be turns into a infinity, okay। and range तो सेम ही है इसकी भी sec की तरह, ठीक है। we have to subtract an interval -1 to 1 from the set of real number, because इसको ये टच ही नहीं करते, ये रेंज में टच ही नहीं होता यहाँ पे। नाउ why I am talking about these points, why I am talking about these trigonometric functions and their corresponding domain and range? Am I a fool? No, I am talking about inverse trigonometric function. But before I start to tell you what is inverse trigonometric function and its formula, let me recapitulate you what is the need of inverse trigonometric function and how we will find the inverse of any trigonometric function, क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो पिक्चर कुछ और ही है। Now if we are talking about the sin x function, okay, if you are talking about sin x function, first we have to know that whether sin x is a invertible function or not, क्या ये invertible होगा? For invertibility property, for the property of invertible, it has to be 1 1 and on 2, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये 1 1 on 2 है और नहीं है। नाउ सी, द डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर, द डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड द करस्पॉन्डिंग रेंज इज -1 to 1, ओके। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x। नाउ चेक इट वेदर इट इज अ 1 1 और मैनी 1, क्या ये 1 1 दिख रहा है आपको? लेट अस टेक सम वैल्यूज, ओके, -3/2 -π/2 एंड सो ऑन, ठीक है, π/2 3π/2 and so on. A lot of values are there because this is a set of real numbers, so it contain almost infinite numbers. Now see, the value of π/2 is 1 and the value of -3π/2 is also 1. I am taking a short example only. The value of -π/2 is -1 and the value of -3π/2 is -1. पुट करके देख लो, sin π/2 आपको 1 ही देगा, ओके, एंड sin -3π/2 भी आपको 1 देगा। सिमिलरली sin -π/2 gives you -1 and sin 3π/2 also gives you -1। ये तो मैंने चार डोमेन में 4 एलिमेंट्स दिए, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे डोमेन में जहां पर को आपको क्या होगा, -1 और 1 आपको मिल रहा होगा। हैंस इज इट नॉट अ 1 1, तो ये क्या हो गया भाई, इट इज अ मैनी वन फंक्शन। नाउ we are talking about the inverse of trigonometric function, but here see this is many one function। अगर ये many one function है तो invertible कहाँ से हो जाएगा, ये तो 1 1 ही नहीं है। So to reduce this function in form of 1 1, what we have to do, we have to restrict its domain, okay। Before I start to teach you graphically, okay, make a graph and then show how to we can restrict the domain of this trigonometric function into principal domain, take the screenshot, okay, pause the video and take the screenshot, okay। Okay, now see, actually the graph of sin x is, the graph of sin x is, this is x axis, this is y axis, x dash and y dash, this is origin, okay। This is -1, this is 1, this is π/2, this is pi, this is 3π/2, okay, this is 2 pi, and here this is -π/2, this is -pi, this is -3π/2, okay, this is -2 pi। You can take lot more values here। This is x axis is indicating domain। अब ये डोमेन को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपका फंक्शन देखो उसका आर्गुमेंट क्या है, x, तो x एक्सिस विल डिनोट द डोमेन और करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ x की रखने पे y की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या है, रेंज। तो रेंज कहाँ पे आ रही है, y एक्सिस में, ओके। नाउ सी, मैंने क्या बताया था, साइन कब कब 0 होगा, फॉर ऑल इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, यानी पाई 2 पाई 3 पाई ये सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, इट विल गिव्स यू 0, ओरिजिन यानी 0 पे भी 0, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड π/2 3π/2 -π/2 इन पे क्या मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। π/2 पे वैल्यू कितनी होती है इसकी 1,
3π/2 पे कितनी होती है -1, देखो 3π/2 -1, ओके, एंड -π/2 पे कितनी होगी भाई -1, ओके, पाई पे तो जीरो ही होगी -π पे, ठीक है, -3π/2 पे क्या वैल्यू होगी इसकी +1 एंड 2π पे 0. सो व्हाट इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ जाता है. नाउ चेक, there are a lot of points, okay, there are a lot of points at which your graph is touching the value 1, ठीक है ना. you can check easily यार, यहाँ पे भी आपको 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको 1 मिल रहा है, ये कहाँ पे मिल रहा है 3π/2 पे माइनस, है ना, ये कहाँ पे 1 मिल रहा है π/2 पे. सिमिलरली ये पॉइंट देखिए, ठीक है, कहाँ पे है -π/2 पे आपको -1 मिल रहा है, ठीक है ना. ऐसी सिमिलरली -3π/2 पे भी आपको क्या मिल रहा है -1 मिल रहा है. तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको सेम वैल्यूज मिल रहे हैं. तो ये फंक्शन 1 1 तो है ही नहीं. सो टू मेक दिस फंक्शन 1 1 सो दैट इट विल बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको 1 1 बनाने के लिए ताकि ये बाइजेक्टिव हो और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. हम क्या करते हैं, हम इसके जो डोमेन है ना, इसका बहुत बड़ा डोमेन है ये, इस डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. ओके, we are going to restrict the domain of this trigonometric function between these 2 points. वो 2 पॉइंट्स कौन से दिख रहे हैं आपको, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया. बात समझ में आ रही है. ये हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से कहाँ तक +π/2 तक. क्यों किया हमने यहाँ तक, बिकॉज -π/2 पे मिनिमम इसने अटेन कर ली वैल्यू -1 और +π/2 पे इसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली विच इज +1. ठीक है, सॉरी यहाँ गलती से -1 हो गया है ना, दिस इज +1, ओके, दिस इज +1. सो बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, बिटवीन -π/2 to π/2, इट इज अटेनिंग इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज बोथ, विच इज बेसिकली द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, है ना. क्या होता है इसका रेंज, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है बेटा -1 से 1, है ना, यही तो इसकी रेंज होती है. सो -1 और 1 दोनों को अटेन कर ले रहा है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. सो व्हाई शुड आई टॉकिंग अबाउट दीज रेस्ट ऑफ द इंटरवल्स, है ना. बाकी इंटरवल को हमने छोड़ के हमने क्या किया, हमने मिडिल का इंटरवल ले लिया इसका, जहां पे मुझे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज की मिल रही है, और मैंने इसको नाम दे दिया क्या, प्रिंसिपल डोमेन. क्या नाम दे दिया मैंने इसको, प्रिंसिपल डोमेन, क्योंकि ये बीच में मिल रहा है मुझे ये इंटरवल. ऐसा नहीं है कि मैं और इंटरवल नहीं ले सकता, है ना. आई कैन ऑल्सो टेक दिस इंटरवल, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल, ये इंटरवल भी लिया जा सकता है. क्यों, क्योंकि बेटा π/2 पे मैक्सिमम दे दिया, 3π/2 पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो ये इंटरवल भी लिया जा सकता है यहाँ से यहाँ का, ठीक है ना, ये इंटरवल भी लिया जा सकता है. पर जनरल वैल्यू जो जनरल इंटरवल जो माना है सभी बुकों में, वो बस यही है कि -π/2 से π/2 के बीच का इंटरवल लिया गया है. एंड दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल डोमेन, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल डोमेन. ओके, नाउ यू कैन चेक, इस प्रिंसिपल डोमेन में x की कोई भी 2 वैल्यूज आपस में क्लैश नहीं करी. मींस कहने का मतलब कि y की 2 वैल्यू के लिए x सेम ना मिल रहा होगा. कहीं पे भी आप चेक कर लो, ठीक है, अगर यहाँ पे एक x ले रहे हो आप, या यहाँ पे एक x ले रहे हो, तो इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, इसकी वैल्यू ऊपर को पॉजिटिव में जा रही है. एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे अगर लें आप, तो इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू यहाँ जा रही है, ठीक है, प्लस में, और यहाँ पर अगर पॉइंट ले तो इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, नेगेटिव में जा रही है. आ रही बात समझ में. तो कुल मिला के वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ साइन एक्स सो दैट इट विल बी 1 1. तो अब क्या हो जाएगा, पहले इनिशियली इसका डोमेन क्या था, इनिशियली साइन एक्स डोमेन इज R एंड रेंज इज -1 to 1, बट आफ्टर restriction the domain of sin x which is known as principal domain, it will be -π/2 to π/2 and the corresponding range is -1 to 1. Now you can check easily, the function is 1 1 or not, -π/2 π/2, ठीक है. -π/2 पे रखो वैल्यू, -π/2 पे क्या देता है साइन -1, +π/2 पे कितना देता है 1. अब आप कहेंगे सर इनके बीच में भी तो बहुत सारे एंगल्स होंगे, बहुत सारे रेडियंस में एंगल होंगे बेशक रेडियंस में एंगल, बट वो क्या देंगे, -1 और 1 के बीच की वैल्यूज देंगे, विच आर अ लॉट ऑफ इन्फिनिटी के करीब करीब वो वैल्यूज आएंगी. दिस इज -1, सपोज दिस इज 0, दिस इज 1. तो इनके बीच के जो भी रेडियंस में एंगल होंगे वो इनके बीच की वैल्यू देंगे आपको, इससे बाहर नहीं जाएगा. यानी कि कहने का मतलब यह है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x यू हैव एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन y which is connected unique in a unique manner. Okay, no any 2 element of y having the same pre-image and no any 2 element of x having the same unique image, है ना. मतलब ये फंक्शन अब कैसा हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गए, ये हो गया आपका 1 1 and on 2.
और अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया तो फिर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा बाइजेक्टिव। कैसा हो गया ये, दिस इज said to be a bijective function, okay, and if a function is bijective then it is also known as invertible function। इसको क्या बोलेंगे नाउ हम, इन्वर्टिबल हो गया, ठीक है। कैसा हो गया ये, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, और इन्वर्टिबल हो गया तो इसका एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा विच इज नोन एज साइन इनवर्स एक्स, और इन्वर्स में क्या हो जाता है, डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं। सो अगर साइन एक्स का डोमेन, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, अगर साइन एक्स का डोमेन -π/2 से π/2 और करस्पॉन्डिंग रेंज -1 से 1 है तो इसका इन्वर्स यानी कि साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और करस्पॉन्डिंग रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2, है ना। दिस इज नथिंग बेटा, ये तो आप सभी जानते हैं कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन देन देयर करस्पॉन्डिंग डोमेन रेंज आर इंटरचेंज, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम्हें। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज कॉस एक्स। साइन एक्स का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। साइन एक्स का डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो इसका प्रिंसिपल डोमेन हो गया -π/2 से π/2 और रेंज तो वही रहेगी -1 से 1, और नाउ इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन बिकॉज इट इज 1 1 एंड ऑन 2, सो इट्स इनवर्स विल बी एग्जिस्ट हियर। सो इसका जो इनवर्स हो जाएगा कैसे फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स हमने लिया था बेटा, ओके। देन अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड, देन इट विल गिव्स यू साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स, ओके। पहले फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू साइन एक्स, और डोमेन ये था, कोडोमेन ये था, मीन्स डोमेन ये था, रेंज ये था। अब आपका फंक्शन क्या बन गया बेटा, ध्यान से देखो, अब आपका फंक्शन हो गया है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, ओके। सो अब आपका डोमेन और रेंज इंटरचेंज होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या आ गया, पहले x था ना, अब क्या आ गया y, तो इसलिए इसका जो डोमेन है वो हो जाएगा -1 to 1 और जो करस्पॉन्डिंग रेंज है वो हो जाएगी -π/2 से π/2, क्योंकि रेंज को अब x डिनोट कर रहा है, ओके, और डोमेन को y, दैट्स वाई। सो दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो पहला टॉपिक है साइन इनवर्स एक्स। अब हम बात करेंगे इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स की, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस इनवर्स एक्स, ओके। So our next trigonometric ratio is cos inverse x, okay. So y is equal to cos x, okay. Now what is the domain of cos x? What is the domain of cos x beta? The domain of cos x is set of real number and corresponding range is -1 to 1, okay. Now I am making the graph of it. This is x axis, this is y axis, this is origin, this is π/2, pi, 3π/2, 2pi, okay, and here -π/2, -pi, -3π/2, -2pi, okay. So these are the points, okay, these are the points, okay student. So our next trigonometric ratio is cos x, okay. We know that the domain of cos x is set of real number and range is -1 to 1. So since the domain is representing by x, so it will represent in x axis and corresponding range will denoted on y axis, okay. This is +1 and this is -1. Now see what is cos. In case of cos, all odd multiple of π/2 gives you 0. So ये जो points हैं π/2, 3π/2, -π/2 एंड -3π/2, यहाँ पे आपको मिलेगा 0। एंड मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इन केस ऑफ कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 गिव्स यू 0, इन केस ऑफ कॉस इवन मल्टीपल ऑफ पाई गिव्स यू +1 एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई गिव्स यू -1. In all the cases n belongs to z, means set of integers, okay. So these things you have to keep in your mind. In case of cos, odd multiple of π/2 gives you 0 and even multiple of π/2 gives you a +1, odd multiple of π/2 gives you a -1, okay. Now see here, at pi you will gives, it will gives you -1, at 2pi it will gives you a +1, okay, +1, and at -pi it will gives you -1, तो -1 यहाँ पे करीब आएगा, at -2pi it will gives you a +1 like that, और 0 पे तो क्या मिलता है, cos 0 की वैल्यू होती है 1. Now meet these points,
Okay, now see this is the graph of cos x. Okay, now see here also you can check, क्या मैं यहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच का इंटरवल ले सकता हूँ? चेक करो, नहीं, क्योंकि इस बीच में केवल आपको अपर पार्ट मिल रहा है, लोअर पार्ट तो मिल ही नहीं रहा है ना, और रेंज क्या है इसकी -1 से 1 है, सो नेगेटिव तो मिल ही नहीं रहा है इस इंटरवल में। इस इंटरवल में केवल पॉजिटिव की वैल्यू ही की बात हो रही है, y की केवल पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है बिटवीन 0 to 1, -1 तो इंक्लूड ही नहीं है इसमें। सो करेंगे क्या इसमें, या तो आप क्या कर लो ये, ठीक है, -π से लेके कहाँ तक, -π से लेके 0 के बीच का ले लो, मतलब समझ रहे हो, -π से 0 का इंटरवल ले लो। क्यों? क्योंकि -π से 0 के बीच में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टच हो रहा है, देख लो ना, -π पे नेगेटिव वैल्यू और 0 पे पॉजिटिव वैल्यू, तो दोनों टच हो गया, यानी ये वाला ले लो आप, है ना, ये वाला पोर्शन ले लो, ठीक है ना, ये वाला इंटरवल, या फिर क्या कर लो 0 to +π, ठीक है ना, 0 से +π के बीच का इंटरवल ले लो, ठीक है, आ रही बात समझ में, कौन सा इंटरवल ले लो, 0 to π, बिकॉज एट 0 यू आर अटेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू विच इज 1 एंड एट π यू आर अटेनिंग द मिनिमम वैल्यू विच इज -1, तो इस इंटरवल में भी इसकी करस्पॉन्डिंग रेंज जो है कवर हो रही है, ठीक है ना, इस इंटरवल में, यहाँ से लेके यहाँ तक में। तो बेसिकली होता क्या है, ऐसे बहुत सारे इंटरवल हैं जहाँ पे तुम्हें -1 और +1 वैल्यू मिलेगी, बट इंस्टीड ऑफ टेकिंग ऑल सच इंटरवल्स वी आर टेकिंग द मिडिल वन। तो मिडिल वन की बात क्या करें, तो हम मिडिल वन में क्या ले लेते हैं, 0 से लेके π को एज ए इंटरवल, सॉरी एज अ डोमेन हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज एट 0 यू आर अटेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू विच इज 1 एंड एट π यू आर अटेनिंग द मिनिमम वैल्यू दैट इज -1। तो +1 और -1 यहाँ पे दोनों कवर हो जा रहे हैं जो इसकी रेंज है, तो इसलिए जो इसकी रेंज है वो हम यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते हैं, विच इज नोन एज अ प्रिंसिपल रेंज। तो इसी को हम बोलते हैं कौन सी रेंज, प्रिंसिपल रेंज नहीं, प्रिंसिपल डोमेन, ठीक है ना। ये आपका जो है बिटवीन 0 to π ये प्रिंसिपल डोमेन बनेगा, वाई, बिकॉज इन दैट एट दैट प्रिंसिपल डोमेन यू आर अटेनिंग यूर रेंज, -1 एंड +1 दोनों वैल्यूज यहाँ पे अटेन हो रही है और बाकी वैल्यू उनके बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं। आप चेक कर सकते हैं ग्राफ से कैसे, सपोज करिए आपको इनके बीच की वैल्यू चाहिए ना, आपको चाहिए 0 और π के बीच की वैल्यू की, ये अटेंड करेंगे नहीं करेंगे इस ग्राफ में, तो आपने सपोज करिए π/2 रखा, तो π/2 पे कॉस क्या देता है, 0 मिल गया, नहीं मिल गया आपको। आपने सपोज π/6 रखा, π/6 मीन्स cos π/6 cos 30, cos 30 1/2 देगा, तो cos 30 1/2 ये है 1, तो 1/2 यहाँ कहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, है ना। अगर यहाँ पे सपोज करिए π/6 है तो π/6 पे आपको ये मिल जाएगा, समझ रहे हैं बात आप। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप 3π/2 रख रहे हैं तो 3π/2 पे आपको पता है आपको क्या मिलेगा, -1/√2। तो देखिए 3π/2 पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको, देखिए यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से इन केस ऑफ कॉस द प्रिंसिपल डोमेन, ठीक है, इन केस ऑफ कॉस द प्रिंसिपल डोमेन, the domain is restricted into principal domain which is between 0 to π and the corresponding range is -1 to 1। यहाँ पे भी हमने इसको रिस्ट्रिक्ट क्यों किया, सो दैट इट विल बी 1 1, इसको 1 1 बनाने के लिए। ऑन टू तो बेटा सारे फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, सारे ऑन टू होते हैं, ठीक है, सबकी प्री इमेज मिलती है सबके केस में, बट क्या नहीं होते, 1 1 नहीं होते। सो टू मेक दैट फंक्शन 1 1 वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट देयर करस्पॉन्डिंग डोमेन। नाउ cos x इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, नाउ इट इज बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव है तो ये क्या होगा भाई, इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, है ना, इनवर्स एग्जिस्ट। आ रही बात समझ में, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू cos इनवर्स x such that the domain will be now -1 to 1 because you are changing, you are talking about the inverse of cos x। सो इसकी रेंज डोमेन बन जाएगा और डोमेन जो है वो रेंज बन जाएगी बेटा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट cos x एंड सिमिलर मैनर यू कैन चेक, ठीक है, फ्रॉम योर NCERT यू गॉट अ लॉट ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, डोमेन एंड रेंज, क्या उनकी करस्पॉन्डिंग डोमेन है और क्या उनकी करस्पॉन्डिंग रेंज है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे उनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके उनको हमने इन्वर्टिबल फंक्शन बनाया, और इन्वर्टिबल फंक्शन बनाने के बाद उनके जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज थे वो क्या थे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एक्चुअली ये क्या है, ये बेसिक नॉलेज दी मैंने इसमें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द थॉरोली चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, इट्स एग्जाम्पल्स, इट्स फॉर्मूला, ठीक है ना, इन सभी का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ है, मीन्स जैसे हमने यहाँ साइन एक्स की ग्राफ की बात की, अब हम इसके इनवर्स के ग्राफ की बात करेंगे। उसमें होता कुछ नहीं है, एक्सेस विल बी गेट इंटरचेंज, क्यों, नाउ सी हियर दिस इज cos x, तो cos x में ग्राफ कुछ ऐसा बना था आपका, है ना,
this is x axis, this is y axis. Why? Because domain is existing on x axis and corresponding range is at y axis. Now in case of inverse, अब इन्वर्स के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो डोमेन है ना, आपका जो डोमेन है बेटा, ठीक है, वो अब x की जगह क्या बन रहा है, y है ना, डोमेन ये बन रहा है और रेंज आ रही है कहाँ पे, x एक्सिस में. तो होगा क्या, अब आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, है ना, कहाँ पे, y एक्सिस के अलॉन्ग. मींस एक्सिस रोटेट हो जाती है इन्वर्स के केसेस में. ओके, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम एंड वर्क हार्ड. ओके.